जो आपने आईआईटी बॉम्बे के साथ किया वो एथिकल हैकिंग थी। हैकिंग में कुछ एथिकल नहीं है, राइट? सो ये पूरा वर्ड ही एब्सर्ड है. हैव यू मेट साइबर क्रिमिनल्स? A hacker can be someone जो बस मेट्रो में जा रहा है. So you don't have to carry a bigger laptop and all to prove that you are a hacker and all. वो बहुत छोटे स्मार्टफोन से भी I can breach into anyone's privacy. Is it easy? मतलब just to do it for fun, is it that easy? I am sitting with someone called Akashdeep single, right? Right? That's you. So okay, so I just enter Akashdeep. और आप चंडीगढ़ से belong करते हो. Then one of your major email ID yahoo.com. आपने अपनी ग्रेजुएशन करी चितकारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. बट ये तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है. ये पब्लिक है, ये पब्लिक है. ओके, सो लेट्स कम टू द प्राइवेट नाउ. नहीं ठीक है, अगर ऐसा ही है तो कुछ ऐसा सेंसिटिव है तो ऑफ कैमरा बताना. This is a report which I have just generated for you. So just have a look on this and just let me know if these are the passwords which you ever used. इन्फॉर्मेशन तो सही है, पासवर्ड गलत. Oh yeah. Oh yeah? Okay. You have my password, bro. You should. This is. I'll not say it completely because this will become very sensitive. But your Aadhaar card ends with and then I'm having your PAN. अब मेरी फट रही है भाई. नहीं. Due to the दिखा ना time मेरा that पैन is- नंबर. Okay. That's not a public data. Aadhaar and PAN is something which is sensitive. Dipanshu Prashar, welcome to Jar Exchange. Thank you so much sir, for being hosting here. Yeah. So for people who don't know, Yeah. आप बताओ कि क्या करते हो आप? Cool. So I'm still 23. In fact, turning 23. So now what I have been doing is कि मैं cyber security का we run a couple of courses for different audience कि कुछ corporates के लिए and simultaneously my major forte is in cyber crimes. So what I do is कि मैं to couple of ministries even to couple of states police मैं उनके cyber crime cases में either I consult or wherever I can contribute in तो मैं थोड़ा बहुत investigate करके I give them couple of evidences. And secondly of course कि पूरा major motive यही है that if in case I can somehow reach to every Indian who has been facing cybercrime, so it would be really good. And majorly overall in the chunk this is what I am doing. Have you met cyber criminals? Of course. So I'll tell you a couple of stories probably. That's the case. So let's suppose I'm talking about ये बहुत recent example है. This is a story from Noida and he's an HNI, right? Okay. So he owns a very good restaurant chain there. और ये जो HNI है तो of course this was a very targeted attack. तो साइबर क्राइम में भी सर दो चीज़ है ना कि अगर इन केस आई एम टारगेटिंग यू स्पेसिफिकली तो मैं कोशिश करूंगा कि आप ही से इफ़ आई एम अवेयर कि यू आर अ वेल्दी पर्सन तो मैं कोशिश करूंगा आप ही से 50-60 लाख रुपए निकाल लें. अनदर पॉइंट इज प्रोबेबली कि मैंने 50-60 लाख लोगों के अकाउंट से 1-1 रुपए निकाल लिए. तो दिस मैं वाज उस कैटेगरी में आता हूँ, वैसे हाँ. मेरे पास है नहीं. नहीं, so this was an HNI who was a very wealthy person and the attacker knew it. तो what he did कि उसने he used AI for voice changing and all. तो what he did कि उसको पता था ये शेड्यूल क्या है मेरे विक्टिम का, right? और जैसे ही अंकल, so he's a close family friend as well, तो जैसे ही अंकल अपनी गाड़ी में बैठे and he has been to on his factory tour and all, तो वो फैक्ट्री का टूर कर रहे हैं. इतनी देर में there is this call again. We track that person down, he's in jail of course. तो उसको उनके पास एक कॉल आता है and the call is of course from a random number. और उन्होंने फ़ोन उठाते ही बोला कि आपका बेटा वी हैव किडनैप्ड एंड आप एक बार बात करो, राइट? समथिंग मैं मुझे पूरी एज इन द टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट मुझे याद नहीं, तो मैंने बोला आपका बेटा आप बात करो. नो, इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस. वो सिर्फ 5-6 शब्द बोलता है, सॉरी सॉरी पापा बचा लो, दैट्स वेरी कॉमन. एंड बेटा भी कोई ऐसा छोटा नहीं है, 22-23 साल का था. तो अब लेकिन उसने ओवर द अटैकर डायरेक्टली थ्रेटन कि आपको इसी कॉल पर एटलीस्ट मुझे 50,000 पेमेंट कर देंगे जस्ट टू मेक श्योर कि आप सीरियस हो भी इस चीज़ के लिए नहीं. And he ended up doing, right? So he ended up doing 50,000. As soon as he cut the phone, he called up at his house, right, to check out with his wife कि है भी वो नहीं है, वो वहीं पे बैठा था. Right? So this happens a lot of times. Now of course he reported it to the police on क्योंकि of course HNI है तो the cases were on fast track as well. तो he somehow the attacker got busted down क्योंकि वो उनके relatives में से ही निकला, right, who was trying to do this. और it's just very common these days. ये मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में 7 लाख रुपए दिए हैं. Okay. शी इज 55. Okay. सेम. majority बेटे की 2-4 आवाजें आई, Right. शी गॉट इमोशनल, Right. 7 लाख रुपए दे दिए, Right. एंड किसी को बता नहीं पा रहे हैं, Right. बिकॉज ऑफ स्टिग्मा है कि हम किसी को क्या बताएंगे. That has to be broken anyhow क्योंकि अरे उनको क्या है कि बेटा ठीक है, चलो ठीक है. हाँ आप नहीं समझ रहे नहीं हो? सर, ये वैसे of course no doubt like this is very evident to you, but ठीक है फिर भी these are
these are the things which have been just rising. और ऐसा नहीं है, इनको रोकना भी टफ है honestly. तो the way we call कि AI as a boon for the entire corporate industry, नो डाउट कि जिस लेवल पर उसका मिसयूज किया जा सकता है, विल कम बैक टू दैट लेटर ऑन एज वेल, बट इट्स वेरी स्केरी. क्योंकि कई बार फॉर मी बीइंग कमिंग आउट फ्रॉम समवन हु अंडरस्टैंड्स, हु ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ साइबर क्रिमिनोलॉजी इज वर्किंग, तो मेरे लिए आई ऑलवेज हैव टू इंश्योर कि मैं आने वाला 1 साल प्रेडिक्ट कर पाऊँ कि ठीक है ये वाले साइबर थ्रेट्स आ सकते हैं टू द इंडिविजुअल्स और टू द कॉर्पोरेट्स. सो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स अकॉर्डिंगली. मतलब मीटिंग अ साइबर क्रिमिनल इज समथिंग व्हिच यू कैन यू नो, हु नोस कि probably within this room someone is just like trying to breach into your LinkedIn and all. So it's very tough to identify them as Who a knows, person. you are masking as one under the guise of ethical. No sir, I don't do that now. I don't do that now. पहले काफी होता था of course ये, but like I keep doing it for fun and all. But trust me, is it easy? मतलब no. just to do it for fun, is it that easy? Shall we give it a try? Probably that's okay. कौन करेगा? Who's the guinea pig? The person who is in the camera, so I feel that would be you. So okay, it's great. So I'll just do one thing. I'll just open the laptop. This would not take probably. So let's see, because this is something which is very randomly I'm doing, right? And neither because I was in touch with your team, right? So neither I have your number and all. I'm assuming, right? So okay, so Wi-Fi is connected. Now I know one thing, guys. Ki I am sitting with someone called Akashdeep Singhal, right? Right? That's you. So okay, so I just enter Akashdeep. This is the समथिंग कि जो हम लोगों ने अपने यूज़ के लिए बनाया. सो ये मैंने इंटेंशनली अपनी टीम के लिए बनाया, सो दैट वी कैन ट्राई टू फिगर आउट अ कपल ऑफ थिंग्स. तो जो ये आप कर रहे हो ये आपने बनाया है? एग्जैक्टली. दिस इज समथिंग जो नहीं है अवेलेबल, बट हम वो वाली चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे कोई आदमी इन चीज़ों से ऑफकोर्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है अप टू अ लेवल, राइट? सो जस्ट एंटर आकाशदीप सिंगल एंड वी गेट अ लॉट ऑफ डेटा. सो 999@gmail.com. That would have been your Gmail ID. School के time की. अच्छा, school के time की. Yeah, of course. That was Linkin Park and Gangster combined. अच्छा, okay. So you have been to Mysore as well, of course, और आप से belong करते हो. Then one of your major email ID @yahoo.com. एंड आपने अपनी ग्रेजुएशन करी चितकारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. ये तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है. ये पब्लिक है, ये पब्लिक है. ओके, सो लेट्स कम टू द प्राइवेट नाउ. नहीं ठीक है, अगर ऐसा ही है तो विल कम बैक टू दिस. जस्ट अ सेकंड. और बाय द वे मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ नहीं. ये तो और बढ़िया है सर. तो फिर हमें मतलब पता लिंक्डइन चल पे पाएगा, हूँ, इंस्टाग्राम और ट्विटर एंड मतलब इन द फिर हमें थोड़ा ज़्यादा पता चल पाएगा कि ओके. तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरा ना बताऊँ, एंड यू जस्ट हैव टू लेट मी नो इफ दिस इज ट्रू एंड ऑल. ओके, सो कुछ ऐसा सेंसिटिव है तो ऑफ कैमरा बताना. अच्छा, okay. So I'll do one thing. This is a report which I have just generated for you. So just have a look on this and just let me know if these are the passwords which you ever used. I have got your 7 different passwords. कहाँ? एक पासवर्ड इधर है. Are these the ones जो आप familiar हो? Is this the information which you use? नहीं, इन्फॉर्मेशन तो सही है, पासवर्ड गलत. Oh yeah. Okay. The point is it doesn't take very long. You have my password, bro. You should. This is. But this happens. और ये मेरी स्किल्स नहीं है, honestly speaking. ये शायद आपकी कभी बेवकूफ़ी रही होगी that you leaked it somehow. I'll come back to this. I get what you're doing here. This is kind of, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आती, but this is data scraping from all my publicly available data. It's not publicly और उसके बाद आपने कुछ एल्गोरिदम लगाए होंगे कि मेरा पासवर्ड क्या हो सकता है. नहीं, तो okay, so if this is information is correct, so you pass this on. Yeah, there are a lot of passwords here, but one of them is correct. One of them is correct. Yeah. That is enough to, of course, breach into your privacy. Because these are the different passwords जो probably शायद आपकी email ID से somehow कहीं ना कहीं associate किए गए हो. या फिर हो सकता है कि जो encrypted passwords थे उनको decrypt करके ये value आई हो. We'll not get into very technical on this, but I'll talk about something different now. So you'll just do one thing. Just give me 1 minute and we'll check what all we can do more, right? So okay, so I've got your number as well, right? वो नंबर निकालना probably ज़्यादा आसान काम है, तो मैं उसके ऊपर कोई फ्लेक्स नहीं करने वाला. नंबर मैं मार्केटिंग हेड हूँ तो of course. नहीं, perfect. So this one is is your number, right? Okay, all right. So we'll just come back to this. हमने एक टूल बनाया है फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इसको हम कहते हैं साइबर शस्त्रा,
right? Okay. So of course like a bit of mixture of mythology and all, right? So I'll just use that tool to figure out what all things can be done, right? So just give me a second, okay? अब मेरी फट रही है भाई. नहीं, of course not. The point is, if you can do it, then a lot of people can do it. Can I say that? Of course, 100%. ऐसा है नहीं कि मैं अकेला हूँ, right? So people can do that. आपका एक बैंक में अकाउंट है, right? और वो बैंक है की. Okay. Now, of course, so your date of birth is. That's quite okay. Now, I'll not say it completely because this will become very sensitive. But your Aadhaar card ends with, right? And then I'm having your PAN. And I don't have to tell if in case I'm having your PAN, so at least I can get into couple of more documents via that PAN, right? But जो मेरा PAN है, Yeah. वो generally OTP के through आना चाहिए, है ना? मतलब ideally. है ना? Exactly. This was all which I wanted to show you. Now, इसके अंदर भी हम और जा सकते हैं, but of course, due to the दिखा ना time मेरा constraints- PAN number? Okay. So your PAN number is just a second. But ultimately, PAN number भी public data नहीं है क्या? No, that's not a public data. Aadhaar and PAN is something which is sensitive. Okay. Okay. Right. So the point is कि ये चीज़ें possible हैं. अब ये हुआ कैसे? मैं आपको जितना मैं बता सकता हूँ मैं आपको कोशिश करता हूँ उतना layman's में समझाने के लिए. छोड़ो भाई, ये स्क्रिप्ट यही करते हैं. नहीं, so the point is कि आपका मेरे पास ईमेल है या फिर मुझे पता है कि आपका पब्लिकली मैं नंबर निकाल सकता हूँ. तो कई बार ऐसा होता होगा कि आप लोग जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, आपसे किसी ने आपने विजिटिंग कार्ड दे दिया, राइट? हमें नहीं पता कि हम अपना डेटा खुद बांट रहे हैं. द इशू इज दैट इन मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस, जो 70% ऑफ द इंडियंस है वो अपना डेटा खुद ही बांट रहे हैं, राइट? अपनी ईमेल आईडी डाल दी, अपने नंबर्स डाल दिए. एक नंबर से आपके 10 चीज़ें निकाली जा सकती हैं. मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ. मेरे पास कलेक्शन है डेटा बेसिस का जो ब्रीच्ड है, राइट, अक्रॉस द ग्लोब. तो फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर लेट सपोज आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि अगर XYZ फूड ऑर्डरिंग कंपनी का डेटा लीक हुआ, आपने कभी अपने नंबर से, आपका उस कंपनी में अकाउंट है और आपने उस नंबर से अपने एड्रेस पे खाना मंगाया होगा, अगर वो डेटा ब्रीच हुआ तो ये गलती आपकी नहीं है, राइट? दैट गलती इज ऑफ दैट कंपनी की, उनका डेटा ब्रीच हुआ. अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उस डेटा में आपका नंबर था, आपके नंबर, अगर आपने KYC करी है तो प्रोबेबली पैन भी था, राइट? या आधार कार्ड नंबर भी था, वो सारा डेटा लीक हो गया. सो दिस इज व्हाट वी डिड. तो मैं पिछले 3-4 सालों से आई वाज कलेक्टिंग अ कपल ऑफ डेटाबेसेस एंड ऑल, उनको मर्ज किया, एक सर्च इंजन बनाया वेयर आई जस्ट एंटर द नेम, तो मेरे जितना डेटाबेसेस में, और कितना फास्ट है वो आपने देख लिया, राइट? सो आपके उन डेटाबेसेस में किसी को नहीं, this is not any sort of an investment opportunity, of course. So name, yeah, फोन नंबर कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा. of course, email, क्योंकि वो तो मैं ही बांट रहा हूँ, right? मतलब in the sense right, people are giving and it these to 3 others. things are enough, honestly. Okay, now you are saying कि हम इनसे क्या क्या निकाल सकते हैं. in the last 2-3 years, Yeah, if there are companies जिनका डेटा ब्रीच हुआ है, right, उस डेटा को सारा को इकट्ठा करके आप कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो. right, and might be possible कि सर सेम पासवर्ड एग्जैक्टली वहाँ और का कहीं और होगा लगा सर. रखा है. 100% इंडियंस की सबसे ज़्यादा गंदी टेंडेंसी वही है कि दे थिंक देमसेल्व्स स्मार्ट इनफ कि वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड बनाते हैं, क्योंकि आपका पासवर्ड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, नो डाउट. वो एक कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड बनाते हैं एंड देन दे यूज इट फॉर एवरीवेयर, राइट? अगर आपका एक अकाउंट समहाउ गॉट हैक्ड तो आपके जितने भी मल्टीपल अकाउंट्स हैं वो सारे. नहीं, मुझे हमेशा डर तो लगता था इन चीज़ों का, बिकॉज सी एनीवेज वी आर लेजी व्हेन इट कम्स टू, मैं अपनी बात करता हूँ, Building लेजी व्हेन इट कम्स बिल्डिंग पासवर्ड्स एंड व्हाटएवर. इट्स टफ टू रिमेंबर देम, अ लॉट ऑफ पासवर्ड्स. द इशू इज दैट ऑल्सो द फैक्ट दैट आज मेरा नेटफ्लिक्स का पासवर्ड है, इसका पासवर्ड है, उसका, मतलब देयर आर जस्ट आई डोंट नो हाउ मेनी प्लेसेस यू क्रिएट एन अकाउंट. इंस्टिंक्टिवली तो आप वही पासवर्ड डालते हो जो आपका मेन पासवर्ड होता है, राइट? तो अगर एक भी छोटी कंपनी का भी लीक हो गया तो इट्स फाइन, राइट? एंड इफ यू हैव 7-8 पासवर्ड, अब सब ट्राई करोगे कुछ ना कुछ चल जाएगा. अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं. सो हम तो फिर भी वी गाइज आर स्मार्ट इनफ, वेल एजुकेटेड कि हम फिर भी 2FA वगैरह लगा के रखते हैं, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट दो 70% पीपल फ्रॉम Tier 2 Tier 3 सिटीज, लेट्स सपोज, तो दिस इज़ अ वेरी ट्रू स्टडी आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ये केस का स्निपेट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. कि मुझे एक नंबर मिला कि ये प्रोबेबली पोटेंशियली टारगेट हो सकता है, राइट? जो सॉरी अटैकर हो सकता है. तो मैंने इस नंबर से आई ट्राइड कैप्चरिंग द इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपकी अभी निकाली. वहाँ से मुझे इसकी ईमेल आईडी मिली, एक पासवर्ड मिला प्रोबेबली, राइट? एंड द अटैकर जो लोकेशन थी वो कहीं बुलंदशहर वगैरह की दिखा रहा था, स्मॉल टाउन इन यूपी. तो मैंने कोशिश करी, ईमेल आईडी डाली, जीमेल, राइट? एंड मैंने पासवर्ड डाला एंड सरप्राइजिंगली आई वाज इन. तो नाउ आई एम हैविंग हिज जीमेल एक्सेस. अंडरस्टैंड दिस, अगर मेरे पास उसका जीमेल का एक्सेस है
तो his Instagram linked to Gmail, his LinkedIn linked to Gmail, his any XYZ profile linked to that Gmail. मैं Instagram पे गया, मैंने पासवर्ड रीसेट मारा, the OTP came into the Gmail, OTP डाला, पासवर्ड रीसेट हुआ, Instagram हैक हुआ, right? So it's just a hacker just needs single one piece of information जो फिर आपकी पूरी chain of custody को validate कर दे. अभी आपने जो किया, Yeah. what are the things 5, 10, 15 or 2 Yeah. that as a layman I should do? Step 1, step 2, step 3 Okay. to say prevention is better than cure, in the sense कि Very true. आप हैक कर लो, चलो ठीक है, Yeah. बट बहुत ही नॉर्मल सा केस मेरे साथ ना हो, हाँ. तो अभी ठीक है, मैं OTP किसी को नहीं बताता, Very true. इतना हाँ, तो सही समझ आ बात है, गया, सही ठीक बात है, है? सही बात है. उसका अवेयरनेस बहुत है हर जगह पे. कंपनीज हम भी जार में भी बोलते हैं OTPs नेवर शेयर्ड बाय एनीवन, SBI भी बोलता है, सब बोलते हैं. सो लेट्स कम टू द थिंग्स दैट दिस 6 people 7 people in this room हाँ. should be doing right now after watching this. पहली चीज की probably there is this very famous website called Intelex, INTELX.io, right? Intelex.io. Public source. Public source is a very public source. और सिर्फ यही नहीं, there are multiple more. There is something like haveibeenpawned.com, right? So there are multiple different websites. So what these websites do? जिस तरीके से डेटाबेस मैंने अभी स्क्रैप किया, दे आर हैविंग दिस डेटाबेस ग्लोबली, राइट? नॉट ओनली जस्ट ऑफ इंडिया बट एंटायरली. डब स्मैश आपको याद होगा, ट्रस्ट मी सर, ऑलमोस्ट 80-85% people, right, from India who created those dub smash shots and all, उन सबका data leaked है, right? And that company lost a lot of $1 million just because of this data leak. तो पहली चीज़ है Intelex.io या ये वाली वेबसाइट्स जो है, अगर आप इनके इन वेबसाइट्स को सर्व करके आप अपना नंबर या आप अपना ईमेल वहाँ पर एंटर करोगे, सो यू विल गेट अ कंपाइल्ड लिस्ट ऑफ ऑल द कंपनीज जहाँ पर आपका डेटा लीक हुआ है, विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ. जैसे canva.com, बहुत स्मॉल टूल है. अच्छा, ओके, आपका भी था, ओके, राइट? सो canva.com, राइट, ग्लोबली यूज सॉफ्टवेयर है, उसमें सबका डेटा मिलेगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, राइट? सो ये आपको कैसे मिल रहा है? सो कैन आई से Canva इज हैक्ड और कैन आई से Canva पे डेटा पब्लिकली अवेलेबल है? Canva was hacked. Canva was hacked. तो अब शायद अगर आपका जो करंट पासवर्ड होगा वो मुझे ना पता चले, राइट? दैट इज अ पॉसिबिलिटी. ये सारे पासवर्ड आपने देखे होंगे, कई ऐसे होंगे जो आपकी बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन है. प्रोबेबली वंस यू आर, जब से डिजिटलाइजेशन हो ही रहा था, तो तब ये वल्नरेबिलिटी ज़्यादा थी, राइट? सो दैट वाज द केस. लेकिन ये वाली वेबसाइट्स आपको सर्व कर दे देंगी अक्रॉस ऑल ऑफ दोज पर्टिकुलर पब्लिक डेटाबेसेस या प्राइवेट डेटाबेसेस जहाँ जहाँ कहीं भी ये डेटा लीक हुआ है. एंड इफ इन केस वी टॉक अबाउट कि क्या आप एज अ लेमैन इन डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, राइट? क्योंकि ये डेटाबेस आता है ओवर द डार्क वेब एंड ऑल, दैट्स अ वेरी सेपरेट स्टोरी इनके सोर्सेज के लिए. लेकिन ये वेबसाइट्स आर मोर देन इनफ टू चेक योर करंट डेटा कि कहाँ पर लीक्ड है. एटलीस्ट मुझे समझ आ गया हाँ, कि हाउ मच ऑफ माय डेटा इज एक्सपोज्ड. एग्जैक्टली. इफ आई बिलीव दीस वेबसाइट्स कि चलो ठीक है. और अगर आप बिलीव करो या नहीं भी सर, द फैक्ट इज कि एटलीस्ट आप सिक्योर कर लो, राइट? सो एज यू सेड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. आपको पता है अगर कि कैनवा में कोई तो पासवर्ड ये दिखा रहा है, तो एटलीस्ट जस्ट चेंज इट, राइट? सो दैट इज द ओनली थिंग व्हिच these websites will be helping you out to do. Okay, so now let's move to the next step. तो अब मेरे को पता लग गया हाउ मच एम आई एक्सपोज्ड. Exactly. How much am I exposed? Another thing to understand how much am I exposed, you can go to Google My Accounts, right? So myaccounts.google.com, वहाँ पर ये हर कोई चेक कर सकता है. प्रोबेबली हम इसको किसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में डाल देंगे कि My Accounts में जाके, और वहाँ पर आपको My Activity का टैब मिलता है, राइट? इफ़ यू गो ऑन My Activity, ओवर देयर आपका जो Gmail है वो जितने भी मल्टीपल थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ कनेक्टेड है वो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता है. सरप्राइजिंगली जब मैंने अपनी चेक करी तो वो almost nearly 100+ third party vendors were connected. Right? Acha, okay, you can do that. In your case, of course, you can. Now Google has also enabled this option कि वो उसके पास जितने डेटाबेसेस हैं वो उनको भी सर्व करके आपको बता सकता है कि आपके कौन से पासवर्ड्स लीक है. So this is also valid thing to do at least. Now over here, location sharing you must have allowed to a couple of third party vendors and all. यहाँ पर आपको apps and services सारे मिल जाएंगे. These are the Google enabled ones only. Yeah, have a look. Right, so ये वो वाले हैं जहाँ पर आप probably sign in with Gmail करते हो. Right, so these are fine. Okay, it's completely okay to use them, no doubt. और ऐसा नहीं है कि ऐसे तो फिर डर के तो of course काम नहीं होगा. या तो I have to live under a rock. हाँ, exactly. ऐसा कुछ नहीं है, but it's something कि there is a regular practice कि at least आप अपने passwords को regularly check करो और at least उनको regularly update करते रहो. At least with
एक दो लेटर्स की भी अगर शफलिंग आप कर रहे हो, so that is also okay. Okay, so one of the things that I do is check off Google My Accounts Of and course. see wherever my Google account is linked. Exactly. And see if I'm using those apps anymore. Exactly. And do I want to? If you go in the detail, you would also realize कि ये जो apps है ये आपके कौन-कौन से specific permissions को access करते हैं. Right, so probably of mic and all, right? तो अगर मैंने गलती से भी इंस्टॉल करते हुए उसको परमिशन दे दी या किसी टाइम पे दी थी अभी नहीं चाहिए, Right. I can then revoke it. Absolutely, absolutely. Okay. Okay. The third thing is कि दिस इज नॉट समथिंग जो सिर्फ सॉफ्टवेयर लिमिटेड है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड है. ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है एंड इसके केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं. दिस इज द कार्ड क्लोनिंग, राइट? सो क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग्स एंड ऑल. सो आई जस्ट शो यू दिस. दिस इज अ वेरी स्मॉल डिवाइस. शायद आपने कभी टिकटॉक रील्स नहीं? ओके ओके. ये डिवाइस प्रोबेबली इट कॉस्ट अराउंड, में जाना पड़ेगा. नहीं इट कॉस्ट अराउंड व्हाट, अराउंड 30,000 मैक्सिमम, राइट? मतलब ओरिजिनल कॉस्ट तो यही है. इंडिया में महंगा बिक सकता है अगर बिके तो, ऑल्दो ये नॉट अलाउड, right, in India to import, right? So now the point is कि if I use this, नहीं, so I ordered it जब ये regulation आई भी नहीं थी, तो fortunately, right? So ये अभी ज़्यादा पुराना डिवाइस नहीं है. This is 2 years old. This is called as Flipper Zero, right? और now what this tool does is कि पहली चीज़ इसके अंदर multiple universal remotes हैं, right? Another thing is that it's a very good feature. So I'm having this credit card, right? It's a normal neobank one because of course मैं किसी बैंक पे try नहीं करना चाहता, right? It's a very small neobank company who issues credit cards and all. So what I do is I go to this option, I go to this. So these all are the applications which I have, right? Can you see? Yeah. And over here there is an option of NFC, right? Now NFC and then there is an option of read. So what I do, I click on read, right? And now I just simply place this credit card over here, right? And that's done. What is this? Now this is cloned. Now what I can do is कि मैं मार्केट में जाके, दिल्ली में सर एक बहुत फेमस जगह है लाजपत नगर, राइट, लाजपत राय मार्केट, सॉरी, वहाँ से ना आपको ये ब्लैंक कार्ड्स, NFC ब्लैंक कार्ड्स आपको 5 रुपए का एक मिलता है, ठीक है? 5 रुपए का एक, दैट्स ऑल. मैं 5 रुपए का एक कार्ड लेकर आऊँगा, विच इज़ अ वाइट ब्लैंक कार्ड. मैं सिर्फ इसके अंदर यहाँ पर इसको एम्यूलेट करके और उस ब्लैंक कार्ड में फीड कर दूंगा. दैट्स ऑल व्हाट आई नीड. तो वो क्लोन हो गया आपके कार्ड, वो पूरा क्लोन हो गया. सो इफ इन केस द नेक्स्ट टाइम आई गो टू मैकडी और बर्गर किंग, आई जस्ट हैव टू यूज दैट प्लेन ब्लैंक कार्ड टू जस्ट टैप ऑन, और पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड से कटेगी. और मैसेज तो लेकिन आपको आ जाएगा, मैसेज आपको आएगा, बट एक ट्रांजैक्शन के बाद आप उसको ब्लॉक कराओगे, ऑफ कोर्स, राइट? क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड ज्यादा है तो ये हो गया, डन है. दिस इज दैट्स ऑल व्हाट इट टेक्स, राइट? सो तो ये आप कैसे लेके घूम रहे हो भाई? आपके पास सिक्योरिटी दे रखी है कि नहीं? अरे तो दिस इज स्मॉल डिवाइस, दिस इज अ वेरी स्मॉल डिवाइस. ऐसा इनफैक्ट इंडिया में बनाना भी आसान है, राइट? सो ऑफ कोर्स अब ऐसे बॉम्ब की रेसिपी तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन फिर रिवर्स इंजीनियरिंग इज इजी फॉर अस. रिवर्स इंजीनियरिंग इज वेरी इजी. कुछ है क्या, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर बना देगा वेरी इजीली, राइट? कि उसको पता है, कुछ नहीं है. दिस इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी. इसको बोलते हैं कि अपना वो RFID सेंसर, दैट्स ऑल. और ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है. इट्स जस्ट कि यूज क्या है. ऑनेस्टली हैकिंग बहुत ओवर हाइप्ड है, राइट? वो कुछ नहीं है. हैकर इज समवन जिसको बस कंप्यूटर के फंडामेंटल्स को ट्विस्ट करके एक्सप्लॉइट करना आता है. दैट इज ऑल. देयर इज अ वेरी फेमस वल्नरेबिलिटी कॉल्ड SQL इंजेक्शन, राइट? SQL कब से चला आ रहा है, कब, मतलब ऑलमोस्ट 90s की टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनकी क्वेरीज को एक्सप्लॉइट कर अगर मैं डेटा फेच कर पा रहा हूँ तो लोगों ने उसको हैकिंग बोल दिया, राइट? सो इतना कुछ नहीं है टेक्निकल, राइट? सो इवन इफ समवन इज प्लानिंग टू बिल्ड देयर करियर इन साइबर सिक्योरिटी, लोगों को लगता है कि इट्स वेरी प्रोग्रामिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑल. नो, एब्सोल्युटली नॉट. इट्स समथिंग, हाँ, कि जितना आपको बस रिसर्च करने का थोड़ा बहुत एंथुसियाज्म है कि यू वांट टू आस्क व्हाई एंड हाउ दिस इज हैपनिंग, तो यू विल एंड अप मेकिंग समथिंग ऑफ योर ओन, राइट? आज से 10 साल पहले की बात है. I don't know. I think the cybercrime departments of the governments would be much more matured now. Right. In 10 years. Absolutely. मैं बेंगलोर में किसी दोस्त के घर पे था. Yeah. We went for a breakfast. Yeah. And मेरा फ़ोन बंद था, मतलब बैटरी नहीं थी. And as soon as I switched it on, तो मेरे को मैसेज आता है कि मेरे अकाउंट में 34,000 रुपीज़ थे. Okay. 10,000, 10,000, 10,000, 4,000, 4 विड्रॉल होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद. Right. मेरे पास मेरा कार्ड है, हाँ, ATM कार्ड है, ठीक है? तो मेरे को लगा कि ऐसे कुछ फ्लॉ होगा जो भी है, तो मैंने एक चीज़ अच्छी करी. आई जस्ट वेंट टू द नियरेस्ट ATM जस्ट टू चेक माई बैलेंस. ओके, ठीक है? ओके. बैलेंस 0 था, हाँ, ठीक है? तो मेरे 34,000 रुपये गए. उस टाइम पे ज़्यादा कमाता भी नहीं था. मैं बहुत मूड ऑफ हुआ. आई वेंट टू ये साइबर क्राइम रिपोर्ट लिखवाने गया. ठीक है. मैं 1 घंटा बैठ के समझा नहीं पाया
या वो नहीं समझ पाए कि हुआ क्या। वो आपने कार्ड किसी को दिया होगा, मैंने कहा ये रहा। वेरी ट्रू। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, दैट बिकॉज आई स्वाइप्ड इन बैंगलोर टू चेक कि मेरा बैलेंस कितना है एट दैट टाइम, राइट, तो वो टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड हो गया, राइट, दैट वाज द ओनली प्रूफ आई हैड टू से कि देखो मैं बैंगलोर में था, राइट, ठीक है, राइट, एंड व्हेन दे चेक तो वो किसी और बैंक के एटीएम से इन चेन्नई ट्रांजैक्शन हुई थी, तो इतना तो प्रूव हो गया, बट उसको मुझे बहुत टाइम लगा समझाने में कि देखो ऐसा है, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं। हाँ, ट्रू। उसके बाद कीड़ा इन मी और व्हाटएवर, जब पैसे नहीं होते ना तो एब्सोल्युटली तो मैंने उस बैंक के हायर मैनेजमेंट के सारे नेम्स निकाले, और उनके आगे @xyz.com करके जो उनकी आईडी होती है, सबको एक ईमेल में सीसी कर दिया कि आई एम गोइंग पब्लिक विद दिस, एंड इतने महीने से मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, नथिंग। द बैंक मैनेजर सेड कि somebody, there is a team which is following, with which you have no contact, ऐसा था 10 साल पहले। And then just because of that email probably, अगले दिन that bank compensated with me 34,000 rupees back in my account, and after that they have never been in touch with me to just tell me कि हुआ क्या है, ठीक है। अब वो साइबर क्राइम रिपोर्ट से क्या हुआ, बैंक से क्या हुआ, पता नहीं भाई, मेरे पैसे वापस आ गए, and I was happy. This is 10 years back. Right. This is probably card cloning. Right. Absolutely. This was a pure example of how card swiping 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2014 में। सर ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, मतलब इफ यू नो देयर इज अ लेजेंड इन साइबर सिक्योरिटी कॉल्ड केविन मिटनिक, ही इज नो मोर, ही डाइड अराउंड 3 years बैक। केविन मिटनिक नोन टू बी द द फादर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। उन्होंने यही सेम टेक 86-87 में किया था, राइट। वो RFID कार्ड, तब क्रेडिट कार्ड्स में NFC नहीं होता था, बट RFID कार्ड्स वर स्टिल देयर, एंड ही क्लोन्ड इवन एट दैट टाइम। तो ये बहुत पुराना टेक है। इट्स जस्ट कि जैसे कहते हैं कि इंडिया पीछे चलता है, तो बस वही है कि यहाँ आते आते टाइम लग रहा है, right, and this is rising. Okay, so what do we do to avoid this situation? To avoid this situation, of course, पहला कि try avoiding swiping your cards at unknown places. Honestly, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कभी लोकल गारमेंट शॉप में जाते हो और आप प्रेफर करते हो कि मैं अपना कार्ड यहाँ पे स्वाइप कर देता हूँ, आई प्रेफर नॉट टू डू देयर, राइट। आप करने को ऑफकोर्स अगर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है, आपके घर की दुकान है, तो आप करो, आपको जो करना है। यू कैन यूज इट एट एयरपोर्ट्स, दैट्स ओके। यू कैन यूज इट एट, यू शुड नॉट यूज इट एट पेट्रोल पम्प्स, क्योंकि पेट्रोल पम्प्स के अंदर ये चीज़ें करना कंपैरेटिवली ईजी होता है। ऑनेस्टली आपने देखा हो सारी चीज़ें सब चला आ रहा है, तो पेट्रोल पम्प्स आर अ गुड सोर्स वेयर कार्ड क्लोनिंग सीम्स टू बी वेरी like very much in the picture, and not in cafes and all, public cafes and all, absolutely not. आप प्रेफर करो either you do UPI, either you do cash payment, लेकिन कार्ड क्लोनिंग मतलब कार्ड इज समथिंग कि आप स्वाइप या टैप बहुत सोच समझ के करें, राइट। दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड ये सिर्फ लेमैन पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स। टैप वर्सेस स्वाइप, इज देयर स्वाइप इज स्टिल कंपैरेटिवली इजी टू क्लोन, क्योंकि एक्चुअली स्वाइपिंग गिव्स अ लॉट ऑफ परमिशन ऑनेस्टली, वाइल टैप जो है वो फिर भी कई हद तक सिक्योर है। तो अगर मैं थोड़ा टेक्निकल गया तो इसमें NFC में लाइक नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में देयर आर मल्टीपल टाइप्स। तो अब जाके 2019-20 के बाद क्रेडिट कार्ड्स को NFC फोरम टाइप 4 पे शिफ्ट किया गया। Does that mean कि मेरे पुराने कार्ड्स को मैं बनवा लूं? राइट, एब्सोल्युटली। आपको रिप्लेस करना होगा, क्योंकि अब जो क्रेडिट कार्ड्स इशू हो रहे हैं कंपैरेटिव, जैसे ऐसे तो ये नियो बैंक भी है, लेकिन फिर भी अब जो क्रेडिट कार्ड्स है दे आर मच सेफर, आप उनको क्लोन नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी स्वाइप करने में देयर आर चांसेस कि वो क्लोन हो सकते हैं। तो स्वाइप तो करना इट्स स्टिल वेरी वेरी स्केरी ऑनेस्टली, आई डोंट डू दैट, तो दैट्स व्हाई। एंड there are cards, credit cards which don't ask for pins, right? हाँ एब्सोल्युटली। यूएस में कहाँ 2FA का ऑप्शन है, उतना है ही नहीं, OTP आते ही नहीं है, OTP ही नहीं है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द स्कैम्स जो यूएस में होते हैं। मेरे दोस्त इंडिया आते हैं, बोलते हैं यार ये क्या अभी भी एंटर करना पड़ेगा, मैंने कहा भाई आई वॉज वेरी फैसिनेटेड सर, सो आई हैव नेवर बीन टू यूएस, सो व्हाट आई थॉट ऑफ कि जब लोग यहाँ पे आए तो कई सारे दोस्त वगैरह जो रेगुलर बात होती है, UPI वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी शॉकिंग टू देम। तो मुझे नहीं पता था कि वी गाइस आर डूइंग समथिंग रियली गुड विद टेक, बट हाँ वही है, हाँ बेच भी रहे हैं, ऑफ कोर्स, एज अ स्टोरी, एज अ ब्रांड, ऑफ कोर्स, फॉर श्योर। and people genuinely when they come back after 5 to 7 years, my friends, and we go for a drive somewhere, तो एक ठेले पे रुक के अगर आपको चाय सुट्टा भी लेना है तो UPI होता है, they get surprised, right? So okay, now coming back to another topic probably on this, connecting to public Wi-Fi's. Let's go. Right, and this is something which you have to avoid 110%, right? You be public का मतलब public मतलब places पे बिना पासवर्ड वाला या पासवर्ड वाला भी हो सकता है, पासवर्ड वाला भी। फॉर एग्जांपल अगर कैफे है, सो ओके हाउ वाईफाई इज वर्क, कि अगर इन केस हम 6 बंदे एक ही वाईफाई से कनेक्टेड है, राइट, सो द ओनली थिंग इज कि मैं देख सकता हूँ कि आप क्या क्या सर्व कर रहे हो,
दिस इज कॉल्ड एज मैन इन द मिडल अटैक, MITM, राइट? दिस इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस, ये होता है। तो अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली के वाईफाई फ्री किए थे, सो दिस हैपेंड, you would not believe, Rajiv Chowk पर, it's a very most crowded metro station so far in India probably, right? It's called Connaught Place wala. Now over there were public Wi-Fi's, right? So a hacker connected with that. I'm not even sure कि hacker है notorious kid and all. So he connected to that Wi-Fi. अब that Wi-Fi was also connected to the, you must have seen the smart TVs, जो smart LEDs हैं, right? And he just played something very notoriously. He just uploaded something and that was playing publicly over Connaught Place metro station, one of the most crowded one. This is what can be done if in case, like so this you're is saying an if example. all of us are connected to this Wi-Fi, it is possible for someone. Absolutely. कोई कर रहा है नहीं कर रहा है वो अलग बात है. It is अगर वो possible. इस Wi-Fi से connected है तो हाँ, it is possible for someone to watch what we are surfing. Absolutely. Up to a level. यहीं पर इसीलिए शायद हम लोगों ने पढ़ा होगा HTTP और HTTPS का डिफरेंस. तो जो HTTPS वाली वेबसाइट्स है, दे आर स्टिल सिक्योर, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव भी वही है, HTTPS स्टैंड्स फॉर सिक्योर. सो वहां पर फिर यू कैन नॉट. आपकी बातें सुन के तो मुझे वो S का भी ट्रिपल S होना चाहिए. मैं सेंस कि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा ना अभी किसी चीज. हाँ, नहीं दैट कंप्लीटली मेक सेंस, क्योंकि मेजॉरिटी ये जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो IP पे ऑपरेट करते हैं. तो अगर आप जो स्मार्ट टीवीज हैं सारे, वो HTTP:// सब IP, दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड, राइट? सो वो ब्रीच करना इजी है. बट इसमें आता भी है दिस इज एन अनसिक्योर नेटवर्क. Absolutely, who cares that? हाँ, तो उसके आगे चले जाते हैं हम, क्योंकि अपने को काम करना है. हाँ, तो हम खुद परमिशंस देते हैं. आज में ना एक बहुत बेसिक सा प्रैक्टिकल है, ऑल्दो ये शायद मुझे आपको पता होगा कमिंग आउट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, लेकिन बाकी जो लोग हैं आप बस एक काम. ये देख के कुछ अरे नहीं नहीं, ठीक है, इससे ज़्यादा चीज़ें होती है सर, बट ठीक है, वी गोना लीव दिस ओवर हियर. पॉइंट इज कि आप बस एक काम करना कि आप व्हाट्सएप पे अपने किसी दोस्त को कॉल करना, राइट? जस्ट कॉल टू एनी अदर व्हाट्सएप, जस्ट वाया व्हाट्सएप कॉल, क्योंकि अब व्हाट्सएप मेटा का ही पार्ट है, राइट? एवरी अब तो उन लोगों ने वो कर दिया इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द एप्स एंड ऑल. एग्जैक्टली, राइट? सो आप व्हाट्सएप पे किसी को कॉल करके जस्ट टॉक अबाउट एनी रैंडम प्रोडक्ट, राइट? उसका ऐड आ जाएगा ना, उसका ऐड आ जाएगा. ये मैंने ट्राई किया. हाँ, एग्जैक्टली, दिस वर्क्स वेरी वेल, राइट? सो द पॉइंट इज कि ये भी एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि व्हाइल यू आर डाउनलोडिंग एप्लीकेशंस, राइट, यू हैव टू बी मेकिंग श्योर कि आप उनको कितना परमिशन दे रहे हो, क्योंकि अब ये रिसेंटली होना शुरू हुआ है कि नाउ देयर इज वन मोर ऑप्शन विच इज एडेड इनटू द परमिशन विच इज कॉल्ड एज अलाउ व्हाइल यूजिंग, राइट? ये अभी आया है, प्रोबेबली हम लोगों को ऐसा लगता होगा. ओके, अलाउ वर्सेस, मेरे को जस्ट वाईफाई खत्म करने दो. हाँ, ओके, श्योर. ओके, एयरपोर्ट वाईफाई, कैन आई यूज इट? You can use that. I just prefer to not serve something, to not enter your credentials which are very confidential. एयरपोर्ट वाईफाई पे मैं नेट बैंकिंग ना करूँ. हाँ, है ना? Absolutely. कैफेज में जाता हूँ, सबसे पहले द पीपल आस्क फॉर वाईफाई, राइट? इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस ऑफ गोइंग टू कैफेज exactly. It's not secure, honestly. Secure तो नहीं है. Even your home network is not secure अगर कोई intruder आके बैठा है तो. It's just something कि I just prefer कि if you want to log in somewhere, just run up your hotspot, log in via that, and then you can start surfing. That's okay, right? Another thing is कि of course HTTP websites पर तो भूल कर भी password enter मत करो if you are in that area, right? ऑल्सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव. अगर कैफे खाली पड़ा है तो कोई नहीं है, तो फिर तो इट्स वेरी लॉजिकल कि आप कर लो, कोई कुछ नहीं करने वाला. बट स्टिल इट्स जस्ट समथिंग इफ यू नो दैट दिस इज अ गुड मेट्रोपॉलिटन सिटीज स्पेसिफिकली, अगर आप कर रहे हो तो जस्ट प्रेफरेबल. देखो, सब कुछ तो अवॉइड कर नहीं सकते. व्हाट वी आर सेइंग इज व्हेन वी आर ऑन अ पब्लिक नेटवर्क, राइट, वी शुड नॉट सर्फ, राइट, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट. एब्सोल्युटली, है ना? एब्सोल्युटली. मूवी देखनी है, यूट्यूब पे जाना है, हाँ, कुछ करना है, दैट इज जो करना है करो, दैट हार्डली मैटर्स. इनफैक्ट यूट्यूब इस तरीके से कोई ऐसा नहीं है. आई एम नॉट मैं डरा इस चीज में नहीं डराना, मतलब नहीं. सी, अगर आप हम नहीं करेंगे तो हाउ विल, अगर मैं और आप दोनों सेम वाईफाई में है, कनेक्टेड है, अगर आप YouTube देख रहे हो तो मैं YouTube नहीं देख सकता आपका, ऑफ कोर्स. और अगर देख भी लो तो इट इज ओके. मैं कह रहा हूं मेरे पासवर्ड नहीं पहुंच. एग्जैक्टली, राइट? सो जस्ट मेक श्योर कि जब आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड हो, सो डोंट शेयर एनी इन्फॉर्मेशन व्हिच इज वेरी कॉन्फिडेंशियल टू यू. तो बस उतना है, बाकी तो यू कैन कनेक्ट, ऑफ कोर्स. ठीक है. नाउ अभी जो ये लिसनिंग है उस पर भी आता हूं. इज व्हाट्सएप एन्क्रिप्टेड? ओके, सो आई विल टेल यू इट फ्रॉम अ केस पर्सपेक्टिव. व्हाट्सएप को डिकोड किया जा सकता है अगर मेरे पास आपका फिजिकली फोन हो या आपकी मेरे पास ड्राइव एक्सेस हो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकोड? ओके, आई विल टेल यू दैट. सो आपने देखा होगा कि ऑफ कोर्स व्हाट्सएप बैकअप लेके गूगल पे अपलोड करता रहता है, राइट? गूगल ड्राइव पे. आप शायद iOS यूज कर रहे हो तो iCloud पे, आई एम नॉट श्योर iCloud पे करता है नहीं, राइट? सो ये क्लाउड पर शेयर करता रहता है और फिर वही बैकअप ओवरराइट होता रहता है एज सून एज
यू लाइक अगर आपने बैकअप एक हफ्ते का शेड्यूल करा है इस दैट इज तरीके से, फॉर मीडिया. हाँ एग्जैक्टली, नॉट इवन मीडिया, इवन द चैट्स का भी बैकअप होता है ऑफ कोर्स, राइट. तो तभी तो जब आप मूव करते हो तो यू जस्ट इंपोर्ट एवरी चैट एंड ऑल, राइट. तो पॉइंट इज कि ये केसेस में हमारे लिए यूज होता है कि अगर इन केस मुझे कहीं किसी रेट में कोई एक फोन सीज मिला, राइट, और मुझे चेक कर रहा है वो उससे व्हाट्सएप डिलीटेड है लेकिन उसकी जीमेल आईडी लॉक्ड इन है, समथिंग एनीथिंग, तो फिर मैं उसमें से चैट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ. दैट कैन बी डिक्रिप्टेड. But that's basically you are logging into someone else's No, network. no, absolutely not. जो WhatsApp मतलब ये टेक्निकल है थोड़ा, WhatsApp ऑलवेज से एंड टू एंड इनक्रिप्शन. सो इट मीन्स कि अगर मैं अपने से अपने पापा को भी मैसेज कर रहा हूँ, राइट, सो यहाँ से चैट जाते ही WhatsApp डजंट इवन नो कि क्या हो रहा है, विच इज नॉट ट्रू. राइट. सो द पॉइंट इज दैट जो कंपनी का ये क्लेम है दैट द चैट्स आर कंप्लीटली एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, दैट वी कैन नॉट इवन, बिकॉज वी डू दैट. लॉ एनफोर्समेंट अगर मेरी चैट डिलीटेड है तो चैट डिलीटेड है, अगर वो आपके बैकअप में डिलीटेड चैट ही गई है, मतलब कि बैकअप में अपलोड ही नहीं हुआ, तो फिर देयर इज नो वे, ऑफ कोर्स. बट द पॉइंट ओके, सो शुड आई शेयर माय पासवर्ड हाँ ऑन WhatsApp विद माय फादर? हाँ, यू कैन डू दैट, दैट्स ओके. द पॉइंट इज कि ये क्रिमिनल्स के लिए ज्यादा थोड़ा सा कॉशियस है ना. हम तो रेगुलरली मैन लोग अपने कार्ड की फोटो लेके राइट फैमिली को भेज देते हैं कि यूज कर लो. एब्सोल्युटली नहीं, दैट इज ओके, आई एम नॉट सेइंग ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ अगर इन केस वही मीडिया बैकअप में अपलोड हुआ, राइट, और अगर आपका ड्राइव का एक्सेस किसी और के पास लग गया, राइट, मतलब अगर आपकी जीमेल का एक्सेस भी मेरे पास है, सो अंडरस्टैंड दिस कि मेरे पास वो पूरा बैकअप आ रहा है विद ऑल द मीडियाज एंड ऑल, राइट. तो दैट इज स्कैरी. दैट someone is always listening, of course. let's come to that. जो आपने WhatsApp call, Absolutely. I tried this with a friend of mine हाँ. who's also into marketing कि let's try it. Right. तो WhatsApp call तो नहीं, we just started speaking 15 minutes about that is also okay. Razer, ठीक है, कि Razer की बात करते हैं, फिर Razer की ad आने लगी. So इसमें थोड़ा because I'm into this field, I understand. अभी Google और Meta also knows that you and me are on the same this thing, right, frequency, whatever. तो शायद आपका और मेरा इंटरेस्ट मैच करता होगा क्योंकि हम 4 घंटे साथ में बैठे हैं, तो आपने कुछ सर्च किया होगा तो उसका भी रिलेटेड प्रोडक्ट आ सकता है. So there are a lot of factors which kind of I try to read and understand because मुझे भी बेचना है दुनिया में, right? But is someone always listening, right? तो उसमें हम कुछ कर सकते. This is something we can't avoid, right? हाँ, absolutely. It's something, of course, ये avoid नहीं. See, as long as it's being served as an ad to me, it's fine. हाँ, absolutely. That is okay, of course. क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं और आप बैठ के मैं आपको अपना पासवर्ड बता रहा हूँ तो समवन विल जस्ट प्रोबेबली एंटर इनटू माय पासवर्ड, फिर 2FA है, 3FA है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स ऑफ कोर्स, राइट. सो मैं ये बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा दैट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एवरी टाइम व्हेन यू आर स्पीकिंग ऑन ऑल, बट इट्स समथिंग this let's just call it hygiene. हाँ, एग्जैक्टली. आपका सोशल हाइजीन या डिजिटल हाइजीन क्या होना चाहिए उसी की बात कर. एंड इट इज अ वेरी रेगुलर प्रैक्टिस टू अपडेट पासवर्ड्स एंड ऑल, राइट. सो इट्स ओके अगर कहीं पर लीक हो भी गया है तो ऐसा डरने वाली चीज़ नहीं है ऑफ कोर्स, until unless of course अगर you are very wealthy and you have a sort of an financial cautious and all those factors involved. Another thing which is just an extension of this is you can use couple of extensions, right? For example, LastPass is a very good software, okay, right? या password managers I would say, right? एप्पल इसीलिए सिक्योर है क्योंकि उसकी पासवर्ड मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी इनबिल्ट बहुत अच्छी है, राइट. सो यू वुड हैव सीन नाउ देयर इज दिस ऑफ कोर्स फिंगरप्रिंट तो लॉक इज ऑफ कोर्स सिंस एजेस, लेकिन दैट इज व्हाई एप्पल इज कॉस्टली. Okay, so iOS versus Android. Yeah. You are saying iOS is innately safer. 100%. From the safety perspective, way more safer. And that is why it is not customizable. Android तो आपके पास stock Androids आते हैं आज के टाइम पे, right? मैं कोई नई ब्रांड लॉन्च करूँ, मैं stock Android पे बना दूंगा. iOS पे you would never have seen कि iOS, like a sub body of iOS and all. So that is way more secure, 100%. और इसीलिए it's highly used in the corporate professional circuits. But iOS is from the security perspective, अगर आप काफ़ी concerned हो तो move to iOS. Otherwise Android is also of course 90% people use that. So it's okay. ठीक है. Is there a best practices for setting up passwords? और इट्स द सेम अल्फा न्यूमेरिक, इतना लेंथ होना चाहिए, वो सब तो हम सबको अभी तक पता ही है. दैट इज ओके सर, क्योंकि सी यू हैड अ ग्रेट कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड. माय पासवर्ड्स वर आल्सो लीक्ड एट अ टाइम, सो इट्स नॉट समथिंग वी आर. सो द प्रॉब्लम इज नॉट व्हाट इज द पासवर्ड, द प्रॉब्लम इज इट हैज बीन लीक्ड समवेयर ऑन द वेब. लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पासवर्ड कहाँ पर हेल्प करती है मैं आपको बताता हूँ. देयर इज अ अटैक कॉल्ड ब्रूट फोर्स, राइट. इट इज अ वेरी फेमस अटैक. तो अगर इन केस मेरे पास कोई एक वेबसाइट है जहाँ पर मुझे अपना यूजर नेम, वेरी फेमस इन योर वर्ल्ड.
हाँ ब्रूट फोर्स इज अ वेरी या इट्स अ वेरी फेमस अटैक. तो व्हाट इट डज इज कि बस एक पासवर्ड की लिस्ट मैंने बनाई, राइट. और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको स्टॉक कर रहा हूँ हर जगह से, तो आपके पेट का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके, सो वी प्रिपेयर अ वर्ड लिस्ट एंड फिर बस हमने एक अटैक लगा के छोड़ दिया कि दिस पासवर्ड विल जस्ट कीप एंटरिंग अगेन एंड अगेन विद मल्टीपल डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. तो जितना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड है, ऑफकोर्स द possibility of breaking it down would be difficult. So that is the only reason that why people prefer कि, और in fact अब तो that's a given. That exactly. That's very logical. और इतना ही है. Apart from this, अगर of course password leak हुआ तो there is no way, हद से हद complicated हो, still it will be a breach. So and we should have different passwords for different sensitive accounts that we have. Absolutely. Also, and of course अगर आप याद नहीं उनको कर सकते हो तो for sure then you can prefer password manager, right. तो password managers, LastPass is something which I was using in my Windows, right. तो it's a good tool, राइट. और वो आपके पासवर्ड्स जैसे ही आप अपलोड करते हो तुरंत डिक्रिप्ट कर देता है. सो दैट इज एक्चुअली एंड टू एंड एनक्रिप्टेड. सो दैट इज अ गुड वे ऑफ प्रोबेबली इफ यू आर यूजिंग इट. You can use Brave as a browser because I personally tested it. So it's much better than your default browsers and all. Yeah. मैं कोई वेबसाइट पे जाता हूँ, Yeah. तो आता है allow और deny cookies. Right. Does that have anything to do with the permission? Right. So Netflix आज के टाइम पर if you know about how it works in the black market, Netflix के cookies बिकते हैं. और कितने बिकते हैं? प्रोबेबली 10 रुपए में 100 कुकीज. देयर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड virustotal.com. Okay. Now what it does is कि आप अगर इन केस कोई भी आपके पास ऐसा अनट्रस्टवर्दी ईमेल या फिर आपके पास कोई एप्लीकेशन आता है तो आप उसको डाउनलोड कर लो और वो आपको पूरी एक रिपोर्ट मुश्किल से 1 मिनट में बनाकर दे देगा. Government infrastructure या in cyber crime. या Where are we today? 2021 के जनवरी में माई इंस्टाग्राम अकाउंट गॉट हैक्ड, राइट. एंड इट वाज सो शेम फॉर मी टू एक्सेप्ट दिस, राइट, एट दैट टाइम. बट फॉर्चुनेटली आई वाज वर्किंग विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सो समहाउ आई रिकवर्ड इट इन 3 to 4 hours. बट आई कैन 100% एडमिट दिस विदाउट एनी शेम कि अगर मैं लॉ एनफोर्समेंट के साथ नहीं काम कर रहा होता, there was no way that I gonna get back my Instagram account. Is DigiYatra safe? Is DigiLocker safe? So all the views which I would be talking about is strictly personal. तो साइबर सिक्योरिटी का रॉ चाहिए. हाँ.